آج ہم ریچھ کے شکار پر جا رہے ہیں اور ہم ایک بڑا ریچھ پکڑنے جا رہے ہیں۔ کیا سہانا دن ہے اور ہمیں ذرا بھی ڈر نہیں لگ رہا۔ اوہ، یہ تو گھاس ہے، لمبی گھنی گھاس۔ یہ کیا؟ ہم اس کے اوپر سے نہیں جا سکتے۔ ہم اس کے نیچے سے بھی نہیں جا سکتے۔ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اوہو، ہمیں اس کے اندر سے جانا ہوگا۔ ہم ریچھ کے شکار پر جا رہے ہیں اور ہم ایک بڑا ریچھ پکڑنے جا رہے ہیں۔ کیا سہانا دن ہے اور ہمیں ذرا بھی ڈر نہیں لگ رہا۔ اب یہ آگے کیا ہے؟ اوہ، دریا ہے، گہرا ٹھنڈا دریا۔ ہم اس کے اوپر سے نہیں جا سکتے اور ہم اس کے نیچے سے بھی نہیں جا سکتے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اس کے اندر سے جانا ہوگا۔ تو ہم آج ریچھ کے شکار پر جا رہے ہیں اور ہم بڑا ریچھ پکڑنے جا رہے ہیں۔ کیا سہانا دن ہے اور ہمیں ذرا بھی ڈر نہیں لگ رہا۔ ارے، یہ آگے کیا ہے؟ یہ تو کیچڑ ہے، گہری گندی کیچڑ۔ ہم اس کے اوپر سے نہیں جا سکتے اور ہم اس کے نیچے سے بھی نہیں جا سکتے اور ہمیں اس کے اندر سے جانا ہوگا۔ ہم ریچھ کے شکار پر جا رہے ہیں اور ہم بڑا ریچھ پکڑنے جا رہے ہیں۔ کیا سہانا دن ہے اور ہمیں ذرا بھی ڈر نہیں لگ رہا ہے۔ آگے تو جنگل ہے، بڑا اندھیرا جنگل۔ ہم اس کے اوپر سے نہیں جا سکتے، ہم اس کے نیچے سے بھی نہیں جا سکتے۔ اوہو، ہمیں اس کے اندر سے جانا ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہے، ہم ریچھ کے شکار پر جا رہے ہیں اور ہم بڑا ریچھ پکڑنے جا رہے ہیں۔ کیا سہانا دن ہے اور ہمیں ذرا بھی ڈر نہیں لگ رہا۔ اوہ، یہ تو برف کا طوفان ہے، ایک گھومتا شور مچاتا برف کا طوفان۔ ہم اس کے اوپر سے نہیں جا سکتے، ہم اس کے نیچے سے بھی نہیں جا سکتے۔ ہمیں اس کے اندر سے جانا ہوگا۔ اور ہم ریچھ کے شکار پر جا رہے ہیں اور ہم بڑا ریچھ پکڑنے جا رہے ہیں۔ کیا سہانا دن ہے اور ہمیں ذرا بھی ڈر نہیں لگ رہا۔ یہ کیا؟ آگے تو ایک غار ہے، ایک تنگ ڈراؤنا غار۔ ہم اس کے اوپر سے نہیں جا سکتے، ہم اس کے نیچے سے بھی نہیں جا سکتے، ہمیں اس کے اندر سے جانا ہوگا۔ چپ چاپ۔ یہ کیا ہے؟ ایک چمکدار گیلی ناک، دو بڑے بڑے بالوں والے کان، دو بڑی بھیانک آنکھیں۔ او نہیں، یہ تو خود ریچھ ہے۔ بھاگو، چلو یہاں سے واپس، جلدی سے غار کے اندر سے نکلو، واپس چلو برف کے طوفان کے اندر سے، بھاگو جنگل کے اندر سے، واپس جلدی کیچڑ کے اندر سے۔ اوہ، یہ تو دریا ہے، اس کے اندر سے چلو۔ اب گھاس کے اندر سے بھاگو، کھولو گھر کا دروازہ، اوپر چلو۔ نہیں، ہم دروازہ بند کرنا بھول گئے ہیں، واپس چلو نیچے، بند کرو دروازہ جلدی، اوپر جلدی بھاگو، کمرے کے اندر بستر میں گھس جاؤ، چادر کے اندر گھسو۔ ہم ریچھ کے شکار پر نہیں جا رہے ہیں دوبارہ، کبھی بھی۔ کھٹا بکرا۔
नींबू के पेड़ पर बकरा रहता, नींबू खाता शाम सवेरे, खाता जाता, इतना खाता गट्स हो जाता। पक्के नींबू, कच्चे नींबू, कड़वे छिलके खट्टे नींबू, लंबे नींबू, गोल नींबू, आड़े नींबू, तिरछे नींबू, काले पीले नीले नींबू, खाता जाता, इतना खाता गट्स हो जाता। पेड़ की छांव में शेर था बैठा, भूखा प्यासा ताक लगाए, पेड़ से कब बकरा उतरेगा और निवाला इसका बनेगा। आखिर एक दिन सुबह सवेरे बड़ी बड़ी जमाइयां लेते बकरे साहब नीचे आए, भूखे शेर के जाल में आए। दौड़ के शेर ने बकरा पकड़ा, आख थू करके थूका। नींबू जैसा खट्टा बकरा, छिलके जैसा कड़वा बकरा। कोई बात नहीं। मोटे हो या दुबले हो, छोटे हो, बड़े हो या बहुत बड़े हो, काले हो या गोरे हो, कोई बात नहीं। कभी गलती भी हो जाती है, दौड़ में पीछे रह जाते हो, इम्तिहान में अच्छे नंबर नहीं आते, कभी कभार रोना भी आता है, कोई बात नहीं। सिर्फ अपने पसंद की कपड़े पहनना अच्छा लगता है, कभी कभी घर का खाना अच्छा नहीं लगता, कभी अलग थलग रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, छुट्टी के दिन देर तक सोना अच्छा लगता है, कोई बात नहीं। कमरा अक्सर बिखरा रहता है, शरारतें भी करते हो, कोई बात नहीं। तुम जैसे भी हो बहुत अच्छे हो। आज हमसे मिलने आए हैं एलन, और एलन के साथ आए हैं उनके बड़े बड़े खतरनाक दांत। एलन का ताल्लुक घड़ियालों के उस खानदान से था जो डराने में बहुत मशहूर थे, और उसके आबा व अजदाद यही काम करते थे। वो खुद पूरे जंगल में डराने में बहुत मशहूर था, और वो अपने इस काम में माहिर था। एलन अपने हर दिन का आगाज करता था पहले अपनी खाल को चमकाने से, नाखून तेज करने से, और फिर वो अपने बड़े बड़े डरावने दांत ब्रश करता था कम से कम 10 मिनट तक। इसके बाद वो आईने में अपने खौफनाक और ख़तरनाक मुंह बनाने की मशक करता, और फिर एलन चुपके से जंगल की तरफ निकल पड़ता अपने डराने के दौरे पर। मैं बड़ा खतरनाक एलन हूँ, डरो मुझसे और मेरे तेज धार दांतों से। मेंढक अपने कवल के पत्तों पर लुढ़क जाते, बंदर दरख्तों से गिर जाते, और तोते खौफ और दहशत से चीखने चिल्लाने लगते। और फिर एलन कैफा लगाता, हा 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 हा,
मुझे डराने में बहुत मजा आता है। और फिर एक लंबे थका देने वाले और डरा देने वाले दिन के बाद एलन अपने कीचड़ के तालाब में जाकर आराम करता और अखबार में अपना पजल हल करता। और फिर वो अपने नकली दांत निकाल देता। किसी को भी नहीं पता था कि एलन के दांत नकली हैं। शब बखैर मेरे प्यारे दांतों, अच्छे ख्वाब देखना मेरे खतरनाक नुकीले दांतों। अब वो बड़ी एहतियात से इन्हें अपनी बहुत ही खुफिया छुपाने की जगह रख देता। एक सुबह ऊँट बिलाऊ बैरी अपने लिए लकड़ियाँ जमा करने जल्दी उठ गया और चलते चलते वो एलन के कीचड़ के तालाब पहुंच गया। ऊँट बिलाऊ की जान निकल गई कि अभी एलन उठ जाएगा और उसे पूरा का पूरा खा जाएगा। वो छलांग लगा के झाड़ियों के पीछे छुप गया। ओहो, बाहर बच गया। और तभी अचानक एक नकली दांतों का जोड़ा झाड़ियों से गिर पड़ा, एक जानी पहचानी आवाज के साथ, स्नैप स्नैप स्नैप। और जब एलन उठा तो उसके दांत जा चुके थे। मेरे दांत, कहाँ गए मेरे दांत? अब वो क्या करेगा? शायद किसी को पता ही ना चले कि वो बगैर दांतों के है। और उसने रोजाना की तरह जंगल में जाने का फैसला किया, लेकिन बगैर दांतों के। मेंढक अपने कवल के पत्तों पर लुढ़क गए, बंदर दरख्तों से गिर गए, उसे चीखने और चिल्लाने लगे, लेकिन हंसते हुए। क्योंकि एलन बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लगता था बगैर दांतों के। और इसके बाद एलन चुपचाप अपने कीचड़ के तालाब की तरफ लौट गया। वो अपनी सारी ज़िंदगी में कभी इतना शर्मिंदा नहीं हुआ था। उसका ताल्लुक घड़ियालों के उस ख़ानदान से था जो डराने में बहुत मशहूर थे, और डराना वो वाहिद काम था जो वो कर सकता था। अब एलन क्या करेगा? बेचारा एलन रोने लगा, पहले थोड़ा थोड़ा और फिर आंसू ने ऐसा बहना शुरू किया कि रुकने का नाम ही नहीं लिया। और फिर वो ऐसे चीख चीख के रोया कि जंगल के सारे बच्चे मिलके भी ना रो पाए, और वो अपने रोने को रोक ही ना सका। जब तक दूसरी सुबह जंगल के सारे जानवर एलन के कीचड़ के तालाब पर आए, उसके नकली दांतों के साथ। हम तुम्हारे दांत वापस कर देंगे, मेंढक ने कहा। सच में? एलन बोला। लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें हमें डराना बंद करना होगा। तोते ने जवाब दिया। लेकिन मैं और क्या करूंगा? मुझे कुछ और करना आता ही नहीं है। एलन अफसरदा होकर बोला। हमारे पास एक तजवीज है, मेंढक ने कहा। और फिर हर दिन अपनी खाल चमकाने के बाद, नाखून तेज करने के बाद और अपने बड़े बड़े खौफनाक दांत ब्रश करने के बाद एलन जंगल की तरफ निकल पड़ता और बन जाता एलन माली, एलन नाई और एलन दांतों का डॉक्टर। लेकिन हर रात एलन बन जाता एक खतरनाक और खौफनाक कहानी सुनाने वाला, और अपनी सनसनीखेज कहानियों से जंगल के सारे जानवरों को खुश करता।
मुझे डराने में बहुत मजा आता है। एलन हंसता और कभी कभार वो अपने दांत ऊँट पिलाऊ बैरी को उधार में भी दे देता था खेलने के लिए। तो ये थे एलन साहब और उनके बड़े बड़े ख़तरनाक नकली दांत। किसी बच्चे ने मुझसे पूछा कि एलन के दांत नकली क्यों थे। ये तो सोचने वाली बात है। आप में से किसी को पता है एलन के दांत नकली क्यों थे? अगर पता है तो बताइएगा ज़रूर। और अगर किसी को नहीं पता कि घड़ियाल क्या होता है, तो घड़ियाल मगरमच्छों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, मगर फ़र्क इतना होता है कि घड़ियाल की नाक चपटी और मोटी होती है, जबकि मगरमच्छ की नाक लंबी और पतली होती है। भालू सुबह से जंगल में शोर मचाता फिर रहा था। कहाँ गया? मैंने तो यहीं रखा था, कौन ले गया है? मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या हो गया भालू कि तुम किससे डराते फिर रहे हो? बी लोमड़ी ने पूछा। इसको, जिसने मेरा शहद का मर्दबान ले लिया है, भालू बोला। तुमने इसे आखिरी दफा कहाँ रखा था? गिरगिट ने भालू से पूछा। मैंने इसे बड़े दरख्त के नीचे छुपाया था, भालू ने बताया। कौन है जो तुम्हारा मर्दबान ले सकता है? गिरगिट ने पूछा। चलो हम सब मिलकर इसे ढूंढते हैं, बी लोमड़ी ने भालू को तसल्ली दी। अगर हम मिलकर ढूंढेंगे तो हमें कोई ना कोई सुराग मिल ही जाएगा, चूहा भी जोश से बोला। और वो सब मिलकर मर्दबान की तलाश में निकल खड़े हुए और देखते ही देखते जंगल के सारे जानवर उनके साथ इस तलाश में शामिल हो गए। ओहो, यहाँ क्या हो रहा है और तुम सब लोग किधर जा रहे हो? हाथी ने पूछा। मेरा शहद का मर्दबान खो गया है, हम इसे ढूंढ रहे हैं, भालू बोला। तुमने इसे आखिरी दफा कहाँ देखा था? हाथी ने पूछा। हाँ, याद आया, मैं घोंघों की रेस देखने गया था, शायद मैं वहाँ छोड़ आया हूँ। चलो वहाँ चल के देखते हैं, भालू बोला। नहीं भालू, वो यहाँ नहीं है, तुम उसे अपने साथ ले गए थे जब तुम सै के साथ डांस करने गए थे, घोंघे ने कहा जब भालू सारे जानवरों के साथ घोंघों के पास पहुंचा। चलो तो फिर वहाँ चल के देखते हैं, भालू ने सब जानवरों से कहा। नहीं भालू, वो यहाँ नहीं है, तुम उसे अपने साथ ले गए थे जब तुम बंदरों के साथ दरख्तों पे झूला झूलने गए थे, याद है? सियार ने सर हिलाकर जवाब दिया और भालू और सारे जानवर बंदरों की तरफ चल पड़े। बहुत माजरत भालू, लेकिन वो यहाँ नहीं है, बंदर बोले। और अब भालू बिल्कुल मायूस हो गया था। ओ नहीं, मुझे लगता है अब मेरा मर्दबान मुझे कभी भी नहीं मिलेगा, भालू उदास हो गया। अरे ये देखो, ये क्या है? चूहे ने किसी चीज की तरफ इशारा किया जो पानी में तैर रही थी। क्या ये मेरे खोए हुए मर्दबान का ढक्कन है? भालू चीखा। भालू! स्लॉथ ने चीख कर भालू को आवाज दी। स्लॉथ! भालू ने भी हाथ हिलाया। मैं तुम्हें हर जगह ढूंढता फिर रहा था, ये लो तुम्हारा शहद का मर्दबान, स्लॉथ ने कहा। ये तुम्हें कैसे मिला? भालू खुशी से फूला ना समाया। तुम इसे गलत दरख्त के नीचे ढूंढ रहे थे, स्लॉथ ने कहा। मैंने तुम्हें सुबह को इसे दूसरे दरख्त के नीचे छुपाते देखा था। मैं इसे तुम्हारे पास लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम सब लोग बहुत तेज तेज जा रहे थे और मैं बहुत आहिस्ता चलता हूँ ना, स्लॉथ ने बताया। सॉरी स्लॉथ, बहुत बहुत शुक्रिया, भालू बोला। और तुम सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, तुम सब ने मेरी बहुत मदद की। भालू ने सारे जानवरों का भी शुक्रिया अदा किया। कोई बात नहीं भालू, दोस्ती दोस्त के काम आते हैं, बी लोमड़ी बोली। इस तरह सारे जानवरों की मदद से भालू को उसका खोया हुआ शहद का मर्दबान मिल गया। और फिर भालू ने सारे जानवरों की दावत की और उसने उन सब को उसमें केक और शहद खिलाया। एक दफा का जिक्र है कि एक मखमली खरगोश था और शुरू में तो सब कुछ अच्छा जा रहा था,
वो मोटा ताज़ा था, नरम व मुलायम था, जैसे कि एक खरगोश को होना चाहिए। इसकी मखमली जिल्द पर ब्राउन और सफ़ेद स्पॉट थे। इसकी मूंछें असली धागे की थीं। इसके कानों में गुलाबी साटन लगी हुई थी। जिस बच्चे को मखमली खरगोश तोहफे के तौर पे मिला था, इसने खरगोश के साथ 2 घंटे तक तो खूब खेला, लेकिन जब इस बच्चे के दोस्त इसकी बर्थडे पार्टी में शरीक होने के लिए आ गए तो वो नए तोहफों की एक्साइटमेंट में मखमली खरगोश को भूल गया और एक लंबे अरसे तक मखमली खरगोश इस बच्चे के खिलौने की अलमारी में पड़ा रहा और किसी ने भी इसके बारे में नहीं पूछा। वो मैला और गंदा हो गया। अब इसकी जिल्द चमकदार और खूबसूरत नहीं रही थी। मखमली खरगोश एक शर्मीला खरगोश था और वो सिर्फ मखमल से बना हुआ था, इसलिए ज़्यादा महंगे खिलौने इसको कमतर समझकर इसके साथ बदतमीजी करते। बैटरी से चलने वाले खिलौने अपने आप को बहुत बढ़तर समझते थे क्योंकि वो खुद को असली समझते थे। मखमली खरगोश अपने आप को असली नहीं कह सकता था क्योंकि वो नहीं जानता था कि असली क्या होता है। असली क्या होता है? मखमली खरगोश ने एक दिन पूछा जब वो हिलने वाली लकड़ी के घोड़े के साथ कमरे के फर्श पर लेटा हुआ था। क्या इसका मतलब ये होता है कि आपके अंदर से बस बस की आवाज आए और आप में से एक हैंडल भी निकला हुआ हो? असली होने का ये मतलब नहीं कि आप कैसे बने हो, हिलने वाली लकड़ी के घोड़े ने कहा। ये जब होता है जब कोई बच्चा आपसे बहुत लंबे वक्त के लिए प्यार करे और आपका ख्याल रखे, और सिर्फ इसलिए नहीं कि उसे आपके साथ खेलना अच्छा लगता है, बल्कि वो आपसे वाकई प्यार करता हो, तो आप असली बन जाते हैं। घर में एक खातून थी जिन्हें अम्मी कहते थे और पूरे घर में इनका हुक्म चलता था। कभी कभार वो परवाह नहीं करती थी कि खिलौने बिखरे पड़े हैं, लेकिन कभी कभार वो एक धुंध तेज हवा की तरह आती और सारे खिलौनों को उठाकर अलमारी में डाल देती। अम्मी इसको घर समेटना कहती थी। सारे खिलौनों को ये सख्त नापसंद था, खास तौर पे मेटल के बने हुए खिलौनों को। लेकिन मखमली खरगोश को कोई खास फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो नरम मुलायम था और उसे जहां भी फेंका जाता वो आराम से गिर जाता और उसे चोट भी नहीं लगती थी। एक शाम जब बच्चा सोने के लिए जा रहा था तो उसे अपना टेडी बियर कहीं नहीं मिला जिसे वो अपने साथ लेकर सोता था। अम्मी बहुत मसरूफ थी और उन्हें बहुत जल्दी भी थी, तो उन्होंने अलमारी का दरवाज़ा खोलकर अंदर हाथ डाला और मखमली खरगोश को कान से पकड़कर उठाया और बच्चे के हाथ में दे दिया। ये लो, ये तुम्हारा पुराना खरगोश है, ये तुम्हारे साथ सोना पसंद करेगा, अम्मी ने कहा। इस रात और इसके बाद बहुत सारी रातों को मखमली खरगोश इस बच्चे के साथ इसके बिस्तर पे सोया। पहले पहले तो मखमली खरगोश को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया क्योंकि बच्चा उसको बहुत ज़ोर से भींच के प्यार करता था। कभी इसको अपने नीचे दबा देता था और कभी कभार बच्चा इसको तकिए के इतने नीचे घुसा देता था कि मखमली खरगोश बमुश्किल सांस ले पाता। लेकिन जल्द ही मखमली खरगोश को ये सब अच्छा लगने लगा क्योंकि बच्चा उससे बातें करता था, उसके लिए अपनी चादर से सुरंग बनाता जैसे कि असली खरगोश बनाते हैं, और वो मज़े मज़े के एक दूसरे के साथ खेल खेलते थे। और जब बच्चा सो जाता तो मखमली खरगोश इसकी थोड़ी के नीचे घुस कर सो जाता और ख्वाब देखता कि बच्चा उसे हमेशा इसी तरह अपने पास रखेगा। जल्द ही बाहर के दिन शुरू हो गए और वो दोनों पूरा दिन बाग में खेल कर गुजारते। एक दिन बच्चे को उसकी अम्मी ने रात के खाने के लिए अंदर बुलाया और मखमली खरगोश अकेले बाहर रह गया। अंधेरा होने के बाद भी बच्चा बगैर मखमली खरगोश के सोना नहीं चाहता था, इसलिए अम्मी को बाहर आकर टॉर्च से मखमली खरगोश को ढूंढना पड़ा। तुम अपने इस पुराने खरगोश के बगैर नहीं सो सकते थे? समझ में नहीं आता एक खिलौने के लिए इतना शोर मचाया, अम्मी ने कहा। ऐसा मत कहे, बच्चे ने कहा, ये खिलौना नहीं है, असली है। जब मखमली खरगोश ने सुना तो वो खुशी से फूला ना समाया क्योंकि इसकी समझ में आ गया था
जो हिलने वाली लकड़ी के घोड़े ने कहा था, और वो आखिरकार सच हो गया था। इसके साथ जादू हो गया था और अब वो सिर्फ एक खिलौना नहीं रहा था, वो असली हो गया था। पप्पू ने जब अपने तोहफे का डब्बा खोला तो इसमें से पेंगुइन निकला। हेलो पेंगुइन, पप्पू ने कहा। क्या हम कोई खेल खेल सकते हैं? पप्पू ने पेंगुइन से पूछा। पेंगुइन ने कुछ नहीं कहा। तुम बात कर सकते हो? पप्पू ने कहा। पेंगुइन ने फिर भी कुछ नहीं कहा। पप्पू ने पेंगुइन की गुदगुदी की। पेंगुइन नहीं हंसा। पप्पू ने तरह तरह के मुंह बना के दिखाए। पेंगुइन फिर भी नहीं हंसा। पप्पू ने जोकरों वाली टोपी पहनी और एक बहुत मजा का खेस गाना गाया और फिर गोल गोल घूमकर नाचा। पेंगुइन ने फिर भी कुछ नहीं कहा। क्या तुम मुझसे बात करोगे अगर मैं सर के बल खड़ा हो जाऊं? पप्पू ने पूछा। पेंगुइन ने एक लफ्ज भी नहीं बोला। तो फिर पप्पू ने पेंगुइन के पेट में उंगलियां चुभोई और पेंगुइन को मुंह चढ़ाया। पेंगुइन ने फिर भी कुछ नहीं कहा। फिर पप्पू ने पेंगुइन का मजाक उड़ाया और पेंगुइन की नकलें उतारी। पेंगुइन फिर भी कुछ नहीं बोला। पप्पू ने पेंगुइन को नजरअंदाज किया। पेंगुइन ने भी पप्पू को नजरअंदाज कर दिया। तो पप्पू ने पेंगुइन को रॉकेट में बांधकर खला में भेज दिया। पेंगुइन वापस जमीन पर आ गया बगैर एक लफ्ज कहे। पप्पू ने पेंगुइन को एक शेर को खिलाने की कोशिश की। पेंगुइन फिर भी कुछ नहीं बोला। शेर पेंगुइन को नहीं खाना चाहता था। पप्पू को बहुत शदीद गुस्सा आ गया। पेंगुइन ने कुछ भी नहीं कहा। कुछ तो बोलो, पप्पू चीखा। शेर ने पप्पू को खा लिया क्योंकि वो बहुत शोर मचा रहा था। पेंगुइन ने शेर की नाक पे बहुत जोर से काट लिया। उई! शेर ने कहा। वाह! पप्पू ने कहा और पेंगुइन ने कह दिया सब कुछ, और ये भी कि किस तरह पेंगुइन ने पप्पू की जान बचाई शेर से। एक सुहानी सुबह पीटर, लिली और बेंजामिन फुटबॉल खेल रहे थे। लिली, मैं तुम्हारी तरफ फेंक रहा हूँ, पीटर ने चीख के कहा। लेकिन पीटर ने एक राउंड फुटबॉल को इतनी जोर से लात मारी वो सीधी ऊपर दरख्तों में गई। आउच! किसी ने कहा और इसके साथ ही नटकिन दरख्त की शाख पर नमूदार हुआ अपने सर को सहलाते हुए। ओए बेढंगे अनाड़ी खरगोश, जरा ध्यान से खेलो, नटकिन ने कहा। ना हम बेढंगे हैं और ना अनाड़ी, पीटर ने गुस्से से जवाब दिया। जी हाँ, तुम हो बेढंगे अनाड़ी, नटकिन बोला। और वैसे भी गुलहरियां खरगोशों से बेहतर हैं हर चीज में, खास तौर पे नट बॉल में। नट बॉल नहीं, फुटबॉल में, बेंजामिन हंसकर बोला। वो ही कहा है मैंने, नटकिन ने जवाब दिया। चलो तो फिर हम तुम्हें चैलेंज करते हैं फुटबॉल के मुकाबले के लिए, पीटर बोला। खरगोश बमुकाबला गुलहरियां, और फिर तुम देख लेना कौन बेहतर है। हम तैयार हैं, नटकिन ने कहा। फिर मिलते हैं यहीं पर 3 बजे। चलो, पीटर चीखा, हम प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस इंसान को बेहतर बनाती है, लिली ने कहा। और ये तो सभी जानते हैं। क्या हमें वाकई प्रैक्टिस की जरूरत है? बेंजामिन ने हाँफते हुए कहा। मुझे यकीन है कि इन बेवकूफ गुलहरियों को तो रूल्स का भी नहीं पता होगा। चलो तो फिर चलकर देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, पीटर ने सलाह दी। खरगोशों ने गिलहरियों को प्रैक्टिस करते हुए पाया। एक तरह से। ओए, बॉल्स को खाना बंद करो,
नटकिन ने चिल्लाकर कहा जब गुलहरियों की टीम एक दूसरे पर हेजलनट फेंक रही थी। और फिर नटकिन ने नट को एक लात मारी और बोइंग टैप किक, और गुलहरियां महारत के साथ नट बॉल्स को एक दूसरे की तरफ फेंकती रहीं। हम तैयार हैं, नटकिन ने खुशी से चीखते हुए कहा। और हम मुश्किल में हैं, बेंजामिन ने गुलहरियों की महारत देखकर परेशानी से कहा। पीटर की बहनें फ्लॉप्सी और मॉप्सी भी खरगोशों की टीम में शामिल होने आ गई थी। वो सब बहुत जान लगाकर प्रैक्टिस कर रहे थे। इसके बावजूद वो सब बहुत घबरा रहे थे। हम ये खेल नहीं हार सकते, पीटर ने कहा। नटकिन कभी हमें ये बात भूलने नहीं देगा। और फिर खेल शुरू होने का वक्त हो गया। नटकिन अपने साथ एक बहुत बड़ा हेजलनट लाया था बॉल के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए। पीटर ने हेजलनट को लात मारी और फ्लॉप्सी की तरफ फेंका, लेकिन एक तेज रफ्तार गुलहरी ने उसे बीच में ही उचक लिया और तेजी से गोल की तरफ भागी। और तभी एक काला सिया साया पूरे मैदान पर छा गया। बूढ़ा भूरा उल्लू आंखों में एक शैतानी चमक लिए नीचे की तरफ झपटा, और ये देखने के साथ ही सारे फुटबॉल के खिलाड़ी छुपने के लिए जगह तलाश करने भागे। ये मेरा हेजलनट है, बूढ़ा पूरा उल्लू नटकिन पर चिल्लाया। तुमने इसे चुराया है, मैं ये वापस लेकर जाऊंगा और साथ में तुम्हें भी। ये तो बहुत बुरा हुआ, और ये बुरा हुआ एक बहुत ही बुरे ओह के साथ, बेंजामिन ने कहा। मेरी मदद करो, नटकिन चिल्लाया, और साथ में वो गुस्सीले उल्लू से बचने के लिए इधर उधर दौड़ता फिर रहा था। बाकी सारी गुलहरियां भी इधर उधर भागने लगी, और साथ में वो एकॉर्न्स को अंधाधुंध लाते मारने लगी ताकि बूढ़े भूरे उल्लू की तवज्जो किसी तरह नटकिन से हटा सके। हमें इनकी मदद करनी चाहिए, पीटर चीखा। लेकिन कैसे? लिली ने पूछा। एक टीम की तरह काम करके, पीटर बोला। चलो तैयार हो जाओ मेरे साथियों। नटकिन बॉल बेंजामिन को दे दो, पीटर ने चीख कर नटकिन से कहा। नटकिन ने हेजलनट को लात मारी और बेंजामिन की तरफ फेंका। बूढ़े भूरे उल्लू ने हवा में कलाबाजी खाई और अपनी सिमत बदल ली। बेंजामिन ने तेजी से वो बॉल लिली की तरफ फेंक दी। लिली ने झपट कर बॉल को लात मारी और पीटर को दे दी। पीटर ने आखिरी वक्त तक इंतजार किया और फिर वो हवा में उछला और बॉल को एक जोरदार लात मारी, और ये गोल। बॉल की सिमत के साथ ही बूढ़े भूरे उल्लू ने भी अपनी सिमत बदल ली और वो बॉल के साथ साथ दरख्त के खोखले तने में जा घुसा। मेरी पूंछ के बल, हैरान और परेशान बूढ़ा उल्लू चीखा। और फिर काफी देर की तकौदों के बाद बूढ़ा भूरा उल्लू अपने सर को दरख्त के खोखले तने से निकालने में कामयाब हुआ, और वो गुस्से में बुड़बुड़ाता हुआ मैदान से रफू चक्कर हो गया, बगैर हेजलनट के, अपने दुखते हुए सर के साथ। ये सब एक साथ चीखे। तुम सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, नटकिन ने कहा। चलो फुटबॉल खेलते हैं। फुटबॉल, सब एक साथ चीखे। हाँ वही तो कहा है मैंने, नटकिन बोला। और फिर ये जोशीला खेल जारी रहा रात होने तक, और इन्हें इस खेल में इतना मजा आ रहा था कि इन्हें याद ही नहीं रहा कि इन्हें स्कोर भी याद रखना था हार और जीत के फैसले के लिए। एक दफा का जिक्र है, एक गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम असलम था। वो और उसकी अम्मी रोजाना सुबह सवेरे उठकर अपनी भेड़ें लेकर पहाड़ी चरागाह की तरफ निकल जाते और सारा दिन इनको पहाड़ी पर चराकर शाम को वापस आ जाते। एक दिन उसकी अम्मी ने उससे कहा, बेटा अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ और बीमार रहती हूँ। पहाड़ी पर चढ़ना उतरना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है, और तुम भी बड़े हो गए हो, इसलिए कल से तुम अकेले भेड़े लेकर चरागाह जाया करो। असलम ने सोचा, वाह ये तो मजे आ गए, अब मैं अपनी मर्जी से जो चाहूंगा करूंगा। दूसरे दिन असलम अपनी भेड़ें लेकर पहाड़ी चरागाह की तरफ चल दिया। भेड़ों को चढ़ने के लिए छोड़कर वो हर काम करने के लिए भागा जो उसकी अम्मी उसको करने से मना करती थी।
वो पत्थरों पर खूब उछला। वो पहाड़ी की चोटी से लुढ़कता हुआ नीचे आया। उसने सबसे ऊंची जगह से नदी में छलांग लगाई। नदी में तैरती बत्तखों को पत्थर मार मार के परेशान किया और फिर शाम को वो घर वापस आ गया। दूसरे दिन सुबह उठकर वो फिर अपनी भेड़ें लेकर पहाड़ी चरागाह पर चला गया और वही किया जो पहले दिन किया था, खूब मजे और मस्ती। फिर तीसरे दिन भी उसने पहाड़ी चरागाह में खूब मस्ती की, लेकिन चौथे रोज वो इन सारी चीजों से बोर हो गया और फिर एक दरख्त के नीचे बैठ गया और सोचने लगा कि अब वो क्या करे जिससे उसको मजा आए। और फिर उसके दिमाग में अचानक एक ख्याल आया और उसकी आंखें चमक उठी। गांव के एक सिरे पर एक जंगल था जहां एक भेड़िया रहता था। वो कभी कभार गांव आकर गांव वालों के मवेशी खा जाया करता था। उसने सोचा क्यों ना गांव वालों को डराया जाए कि भेड़िया आ गया है, और ये ख्याल आते ही वो पहाड़ी पर सबसे ऊंची जगह खड़े होकर चीखने लगा, बचाओ बचाओ, भेड़िया आ गया है, ये मेरे सारे भेड़ों को खा जाएगा, कोई है, बचाओ बचाओ। ये सुनते ही सारे गांव वाले डंडे और लाठियां लेकर भेड़िए को मारने के लिए पहाड़ी पर चढ़ गए। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो वहां कोई भेड़िया ना था, और जब असलम ने सारे गांव वालों को डंडे और लाठियां उठाए पहाड़ी पर चढ़ते देखा तो उसको बड़ा मजा आया और वो जोर जोर से हंसने लगा। जब गांव वालों ने उससे पूछा कि भेड़िया कहाँ है, तो वो बोला, कोई भेड़िया वेड़िया नहीं है, मैं बोर हो रहा था इसलिए मजाक किया था सबके साथ। गांव वालों को बहुत गुस्सा आया और वो उसको बुरा भला कहते हुए वापस अपने घरों को चले गए। दूसरे दिन फिर असलम ने बचाओ बचाओ भेड़िया आ गया का शोर मचाना शुरू किया, और फिर गांव वाले उसी तरह भेड़िए को भगाने पहाड़ी पर चढ़ाए। और जब इन्हें मालूम हुआ कि असलम फिर इन्हें बेवकूफ बना रहा था तो उसको खूब डांट डपट कर अपने घरों को वापस चले गए। असलम को इसमें मजा आने लगा था, इसलिए उसने तीसरे रोज भी यही किया और बेचारे गांव वाले उसके हाथों फिर बेवकूफ बनकर पहाड़ी पर चढ़ाए उसको भेड़िए से बचाने। और जब उनको मालूम हुआ कि वो फिर झूठ बोल रहा है तो उनके गुस्से की इंतहा ना रही और वो सब उसको बुरा भला कहते हुए वापस अपने घरों को चले गए। और असलम साहब इत्मीनान से आंखें बंद किए दरख्त से टेक लगाकर बैठे मुस्कुराते रहे। लेकिन चौथे दिन जब उसने बचाओ बचाओ भेड़िया आ गया का नारा लगाया तो कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। जब असलम ने देखा कि कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा तो उसने और जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। उसको शोर मचाता देखकर उसकी भेड़ों ने भी जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया। असलम और भेड़ों का शोर वो सुनकर गांव वाले तो नहीं आए, लेकिन जंगल से भेड़िया निकल कर आ गया। और जब उसने एक साथ इतनी सारी भेड़ें बगैर किसी हिफाजत के देखी तो वो उन पर झपट पड़ा। असलम भेड़िए को देखकर लपक कर दरख्त पर चढ़ गया और उसने मजीद चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। यहाँ तक कि भेड़िया एक एक करके उसकी सारी भेड़ें खा गया। और शाम को जब असलम रोता हुआ बगैर भेड़ों के गांव पहुंचा और सारी बात गांव वालों को बताई तो गांव वालों को बहुत अफसोस हुआ कि वो असलम की मदद को ना जा सके। इन्होंने असलम से कहा कि अगर तुम हमसे झूठ बोलकर बार बार हमें ना सताते तो आज हम तुम्हारी मदद के लिए जरूर आते। असलम अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने गांव वालों से माफी मांगी और वादा किया कि वो आइंदा ऐसी कोई शरारत नहीं करेगा जिससे किसी को तकलीफ हो। और फिर गांव के हर घर ने असलम को एक भेड़ तोहफे में दी ताकि भेड़िए ने जो असलम की भेड़ें खा ली थी उसका नुकसान पूरा हो सके। बेजार गांव एक बहुत ही बोरियत से भरी जगह थी। पूरा गांव ही बेरंग और फीका था। बेजार गांव के लोग इसके नाम की तरह हर वक्त बेजार रहते थे और इनकी जिंदगी बेमजा थी जिसमें कोई नई चीज नहीं होती थी। लेकिन अचानक एक दिन गांव के आसमान पर कौसो खजा नमूदार हुई
جس نے آسمان کو رنگوں سے بھر دیا، اور اس قوس و قزح سے اچھلتے کودتے یونیکارنز کا ایک ریوڑ اتر آیا گاؤں میں۔ پورا گاؤں ہی حیران ہو کے رہ گیا کہ یہ کہاں سے آ ٹپکے ہیں۔ جب گاؤں والوں نے یونیکارن سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور کیوں آئے ہیں، تو ایک یونیکارن نے جواب دیا کہ ہم تم سب سے ملنے اور تمہارا گاؤں دیکھنے آئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے گاؤں کے چوراہے پر کھڑے ہو کر دھڑا دھڑ سیلفیاں لینی شروع کر دی۔ اس کے بعد وہ گاؤں کی کاؤنسل کی میٹنگ میں گھس گئے اور کرسیوں پر بیٹھ کر انہیں گھمانے لگے اور پوری میٹنگ کو تہس نہس کر دیا۔ یہ سب کرنے کے بعد یونیکارنز نے کہا، کچھ مزہ نہیں آ رہا، گاؤں کی ان گلیوں کو کچھ مزیدار سا ہونا چاہیے۔ اور پھر انہوں نے گاؤں کو بادلوں سے بھر دیا اور سارے پالتو جانوروں کو جمع کر کے انہیں نئی نئی ٹرکس سکھائیں۔ جب وہ گاؤں میں آگے گئے اور انہیں بچوں کی کھیل کا میدان خالی پڑا نظر آیا تو وہ بولے، بچوں کے کھیل کے میدان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے میدان کو کینڈی لینڈ بنا دیا اور سلائڈز کو قوس و قزح میں بدل دیا۔ بیزار گاؤں کے لوگوں کو یہ تبدیلیاں بالکل پسند نہیں آ رہی تھیں اور وہ چاہتے تھے کہ یونیکارنز کچھ بھی بدلے نہ، لیکن یونیکارنز نے ان کی ایک نہ سنی اور وہ گاؤں کے بیوٹی پارلر میں گھس گئے اور ہر کسی کے بالوں کے رنگ کو بدل کر رنگ برنگا کر دیا۔ انہوں نے بیزار گاؤں کی بیکری کے مینیو کو بھی بدل دیا، اور جب چمکیلی نے گاؤں کی بیکری سے یونیکارنز کے بنے ہوئے کیک خریدے تو وہ چیخ پڑی، میں نے اپنی زندگی میں اتنی مزیدار چائے اور اتنے بڑھیا کیک کبھی نہیں کھائے۔ اس کے بعد یونیکارنز گئے بیزار گاؤں کے سوئمنگ کلب میں، اور وہاں جا کر وہ سوئمنگ پول میں کود پڑے اور بچوں کے ساتھ پانی میں خوب کھیلا اور بچوں کو سوئمنگ پول میں کھیلنے کے لیے نئے مزیدار کھلونے دیے۔ یونیکارنز جب گاؤں کے شاپنگ مال سے گزرے تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ گاؤں کا ذوق فیشن میں اتنا ہی بیکار ہے جتنا کہ گاؤں کا نام۔ اس لیے انہوں نے اپنا جادو چلایا اور گاؤں کا فیشن سینس ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ابھی تک گاؤں کا اسکول یونیکارن سے بچا ہوا تھا، لیکن ایک دوپہر وہ وہاں بھی گھس گئے اور بولے، چلو اس میتھ کی کلاس کو مزیدار بنائیں، اور انہوں نے میوزک اور ڈانس کر کے بچوں کو مختلف شیپس کے بارے میں پڑھایا۔ یہ سب کرنے کے بعد بھی یونیکارنز کو چین نہ آیا، اور ایک رات جب پورا گاؤں خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا، یونیکارنز ان کے گھروں میں گھس گئے اور وہاں چمکدار گلیٹر کے ساتھ لڑائی کر کے سارے گھروں کو رنگین اور چمکدار بنا دیا، اور اب پورا گاؤں اتھل پتھل ہو گیا تھا اور بیزار گاؤں ہمیشہ کے لیے بدل چکا تھا۔ بیزار گاؤں کے لوگ اب یونیکارنز کی حرکتوں سے بیزار ہو چکے تھے، اور انہوں نے یونیکارن سے کہا، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ ہمارا گاؤں تمہارے لیے نہیں ہے، ہم کو ہر چیز ویسے ہی چاہیے جیسے پہلے تھی، چلو تم لوگ بھاگو یہاں سے اب۔ لیکن یونیکارن ٹس سے مس نہ ہوئے تو بیزار گاؤں کے لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور انہوں نے شور مچایا اور یونیکارن سے کہا، نکل جاؤ ہمارے گاؤں سے، ہم سب تمہارے خلاف ایک ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ سب صورتحال دیکھ کر ایک چھوٹی بچی بیزار گاؤں کے لوگوں کے سامنے کھڑی ہو گئی اور اس نے گاؤں کے لوگوں سے کہا، یونیکارن تو صرف کھیلنا چاہتے ہیں، آپ سب لوگ بہت ہی بور ہیں، اور میرے خیال سے یونیکارنز کو گاؤں میں ہی رہنا چاہیے کیونکہ انہوں نے ہمارے گاؤں کو بہتر بنایا ہے۔ تب بیزار گاؤں کے لوگوں نے اپنے ارد گرد دیکھا اور پھر انہوں نے پہلی بار نوٹس کیا کہ ہر چیز چمکدار اور خوبصورت ہو گئی ہے۔ پہلے ان کی نظر صرف اس افراتفری پر پڑتی تھی جو یونیکارنز ہر چیز بدلنے کے لیے کر رہے تھے، لیکن اب بدلی ہوئی صورتحال میں ہر چیز بہتر لگ رہی تھی، تو وہ سب مسکرانے لگے
اور خوشی سے انہوں نے یونیکارنز کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دیا۔ یونیکارنز نے بیزار گاؤں کو خوشگوار گاؤں میں بدل دیا تھا، جہاں بچے گلیوں میں کھیلتے تھے اور ان کے والدین بھی ان کے ساتھ کھیلتے تھے، اور وہاں طرح طرح کی مزیدار چیزیں تھیں ہر ایک کرنے کے لیے۔ اور اس کے بعد یونیکارنز ہر سال گاؤں میں آتے ہیں، اور اب لوگ ان کے آنے کا انتظار کرتے ہیں اور ان کے آنے پر خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں زندگی میں زندہ دلی کوئی بری چیز نہیں۔ آج ہم سنیں گے احمد کی کہانی۔ احمد بہت پیارا بچہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک مسئلہ ہے۔ دیکھتے ہیں کیا مسئلہ ہے۔ امی کہتی ہیں احمد یہ پانی کا گلاس باورچی خانے میں رکھا۔ احمد کہتا ہے آپا کیوں نہیں رکھتی؟ یہ تو بہت بری بات ہے احمد۔ امی کہتی ہیں احمد اسکول سے آتے ہی ٹی وی مت دیکھو۔ احمد کہتا ہے ابو بھی تو آفس سے آ کر ٹی وی دیکھتے ہیں۔ بات تو صحیح کہتا ہے احمد، جب ابو آفس سے آ کے ٹی وی دیکھ سکتے ہیں تو احمد بھی دیکھ سکتا ہے۔ امی کہتی ہیں احمد بلی کو پیار مت کرو ورنہ طبیعت خراب ہو جائے گی۔ احمد کہتا ہے کتنی پیاری بلی ہے، اسے پیار کرنے سے طبیعت خراب نہیں ہوگی، اگر ہوئی تو ڈاکٹر چاچو دوا دے دیں گے۔ احمد جب پاپا کے ساتھ لوڈو کھیلتے ہوئے ہار جاتا ہے تو رونے لگتا ہے۔ امی کہتی ہیں یہ تو کھیل ہے، تم روتے کیوں ہو؟ احمد کہتا ہے آپا چیٹنگ کرتی ہیں۔ یہ تو بہت بری بات ہے آپا، کھیل میں چیٹنگ نہیں کرنی چاہیے، لیکن احمد کو بھی رونا نہیں چاہیے، کھیل میں ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے۔ احمد کو کھانے کا بہت شوق ہے۔ امی کہتی ہیں اتنا نہ کھاؤ، پیٹ خراب ہو جائے گا۔ احمد کہتا ہے ابھی پیٹ نہیں بھرا، تھوڑا سا اور۔ احمد اسکول سے آتا ہے، امی کہتی ہیں احمد نہا لو۔ احمد کہتا ہے ابھی نہیں، کھانا کھانے کے بعد۔ کھانے کے بعد امی کہتی ہیں ذرا آرام کر لو پھر نہا لینا۔ احمد کہتا ہے کھیلنے کے بعد۔ واپس آتا ہے تو امی کہتی ہیں احمد نہا لو، مولوی صاحب آنے والے ہیں۔ احمد کہتا ہے مولوی صاحب سے پڑھ کر نہا لوں گا۔ مولوی صاحب کے جانے کے بعد امی کہتی ہیں اب نہا لو۔ احمد کہتا ہے ابھی بہت بھوک لگی ہے۔ کھانے کے بعد احمد کو نیند آنے لگتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سو جاتا ہے۔ نہانے کا چور احمد۔ تو یہ تھا ہمارے احمد کا مسئلہ، ان کو نہانا بالکل نہیں پسند۔ نہانا تو مجھے بھی اچھا نہیں لگتا، لیکن صرف سردیوں میں، گرمیوں میں تو نہانے کا بہت مزہ آتا ہے۔ تو کون ہے آپ میں سے جو نہانے کا چور ہے؟ اور جو بھی نہانے کا چور ہے اسے ہم آج سے احمد کہیں گے۔ تو یہ تھی احمد کی کہانی۔ اب اللہ حافظ، اگلی بار کسی اور کی کہانی کے ساتھ واپس آئیں گے۔ کالا بھوت۔ خان چاچا نے جب پل دیے تھے تو ایک کالا بھوت ان پھلوں کے ساتھ چلایا۔ گھر آ کر جب پلوں کو دھویا تو کالا بھوت اچھل کر کھڑکی سے باہر کھودا اور اپنی چلاکیاں دکھانی شروع کر دی۔ پہلے تو وہ اڑ کر درخت پہ جا بیٹھا جہاں اس کے کئی دوست پہلے سے موجود تھے۔ وہاں کچھ ننھے منھے پھول بھی کھل رہے تھے۔ کالا بھوت ان سے لپٹ گیا۔ پھولوں نے بہت شور مچایا، وہ بہت چیخے چلائے، لیکن کالے بھوت نے انہیں ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ بیچارے پھول۔ ہوا سے کالے بھوت کی خوب دوستی ہے، اس پر بیٹھ کر
इसने दरिया का रुख किया। ठंडा ठंडा चमकीला पानी और अपने साथी देखकर भूत मियां ने छलांग लगा दी। एक मछली सांस लेने ऊपर आई तो काला भूत सीधे इसके मुंह पर पार हो गया। मछली बहुत तड़पी, बहुत रोई, लेकिन काला भूत ने इसे भी ना छोड़ा, यहाँ तक कि मछली की सांस बंद हो गई। बेचारी मछली। काले भूत, काले भूत! दरिया के बाहर बच्चों ने जब काले भूत और इसके हजारों दोस्तों को अपनी तरफ आते देखा, खूब शोर मचाया। फिर आगे बढ़कर सब ने इनको दबोच लिया। काले भूत बहुत चिल्लाए, बहुत उछले, लेकिन बच्चों ने इन्हें नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, हमें इन भूतों की जरूरत नहीं, हम इनके बगैर भी रह लेंगे। अब हम किसी भूत को दरिया पार नहीं करने देंगे।